Good afternoon, everyone. This is Hitesh Angit from Mumbai Support, and I welcome you all to this two-day webinar where we are conducting the webinar on the basis of the technical query, where you can easily identify the different conditions of the RSI, and accordingly, we can use in our technical query. Okay, so in this webinar, we have 2 days topic where I have separated into 2 different days, where the first condition start and it will cover till the 14th one, and the day 2 topic will be from 15 till 27. Okay, so I will discuss about each and every conditions of the RSI in detail so that we can use different technical query condition with different combinations. Okay, so yeah, so with that, first we'll go to our software, and how to add RSI, we'll see that. Okay, so for adding the indicator, we have to press S on the chart. Okay, जब आप S press करोगे चार्ट पे, you will get this study session window, study selection window, where you have to press R and you will get the relative strength index. Okay, once you select this, you can see there is a highlighted relative strength index as a name. Okay, in that you will get a second thing which is a parameter. So आप यहाँ पे check करोगे, there are 2 parameters. One is RSI parameter and other one is the average parameter. Okay, so अगर आपको RSI period change करना है, so you can modify from here. और अगर आपको average period चाहिए तो आप यहाँ से कर सकते हो. Okay, in that you will see there are 2 lines where we use in the oscillators of the RSI. Okay, the first one is the overbought and the second one is the oversold. So you can modify from here so that you will get the lines. Like I am selected 70 as overbought and 30 as oversold. Okay, then I am selecting the all time frames where I can see this indicator in all time frames, like in daily, intraday, or maybe in a weekly. So आप यहाँ पे जब आप select करोगे all time frames, हमें हर एक time frame में वो indicator show होगा. Okay, अगर आपको कुछ extra levels डालना है, then you can plot over here. Okay, so you can put the, suppose if you wanted at a 50, you can put at level 50 and then you can get a line. Okay, then the second tab, the third tab is about the line, where you can change the color as well as change the thickness. Okay, so suppose if you wanted to increase the thickness of the RSI, you can give the first condition as a thickness as a 2, so that thickness will be increased. Then there's an option of a user where you can name the study, and the fourth one is the input, and the fifth one is the subgraph where you want it to plot. So I'm plotting it on separately subgraph. Okay, now I've added. So आप यहाँ पे चेक करो, RSI का जो green वाला है line, वो RSI का line है, and the red one is the average line, RSI average. Okay, and अगर आप यहाँ पे चेक करोगे mid में there is an 50 का level. So आपके 50 का level पे आपको एक horizontal line आएगा, because हमने वहाँ पे levels में 50 select किया था. Okay, so यहाँ पे ये जो upper level है वो 70 है, and अगर आप जैसे इसके चार्ट को छोटा या बड़ा कुछ करोगे, so scale wise आपको लाइंस है वो आपको शो होगा चार्ट पे. ओके, अगर ये चीज अगर मैं इंटरडे टाइम फ्रेम में जाता हूँ, सो मुझे इंटरडे टाइम फ्रेम के हिसाब से मुझे वो लेवल्स दिखाएगा. ओके, सबसे पहले क्वेश्चन कि आरएसआई ही क्यों? ओके, बिकॉज आरएसआई एक ऐसा इंडिकेटर है जो हम कंसिडर कर सकते हैं कि वो एक लीडिंग इंडिकेटर है, बिकॉज उसके सिग्नल्स काफी फास्ट है. ओके, वहां पे अगर आप चेक करोगे आरएसआई के अंदर 2 लाइंस है जिसके थ्रू आपको एक डायरेक्शन पता चलता है कि या वो बुलिश है या बेरिश है. अगर स्टॉक आरएसआई एवरेज के ऊपर है, देन वी कैन एक्सपेक्ट कि हाँ वो बुलिश है, एंड अगर स्टॉक आरएसआई एवरेज के नीचे है जो कि रेड लाइन है, देन वी कैन एक्सपेक्ट ये बेरिश ट्रेंड हो सकता है. ओके, बट एट द सेम टाइम व्हेन यू सी द आरएसआई लाइन विच इज इन ग्रीन, जैसे जैसे उसका लाइन इंक्रीज हो रहा है,
उसका लाइन का जो लेवल्स है, जो नंबर्स है वो इंक्रीज हो रहा है, विच मीन्स स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। ओके, एंड एट द सेम टाइम कहाँ से वो रिवर्स होगा, उसका भी यहाँ पे रिवर्सल क्राइटेरिया, जहाँ पे वो ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड का क्राइटेरिया है। सो ये वो इंडिकेटर है जहाँ पे आपको सारी कंडीशंस साथ में मिल जाती है एंड विथ फास्ट सिग्नल्स। ओके, so we'll see this all the different parameters of the RSI with the technical query. Okay, so first यहाँ पे अगर आप चेक करोगे, अगर आप कोई भी कंडीशंस ऐड करते हो, इट विल आस्क यू द RSI और द RSI एवरेज। सो जो भी आपको सिलेक्ट करना है, आप वो रेडियो बटन को सिलेक्ट करके आप ऐड कर सकते हो। ओके, सो ये होगी हमारी RSI की सेटिंग्स। नाउ विल स्टार्ट विद द कंडीशंस। ओके, सबसे पहला चीज, entering overbought zone. Normally when we add the RSI in our software, okay, it has a default parameters of 1370. okay, so अगर आपको लगे कि हाँ कि मुझे अगर कुछ पैरामीटर्स चेंज करने हैं, सो वो आपको कंडीशंस में ऐड करते टाइम ही चेंज कर लेना है। जैसे कि आई एम गोइंग टू क्वेरी, आई एम सेलेक्टिंग टेक्निकल क्वेरी। ओके, और मैं यहाँ पे एक विंडो ओपन किया हूँ। ये टेक्निकल क्वेरी विंडो के अंदर अगर आप चेक करो, सो वहां पे अगर मैं डबल क्लिक करता हूँ कोई भी सिंगल कंडीशन पे, बिकॉज टू क्रिएट अ टेक्निकल क्वेरी वी नीड टू आइडेंटिफाई द कंडीशन। ओके, सो कंडीशन को डबल क्लिक करोगे, सो आपको वहां पे RSI प्रेस करना है। ओके, जैसे अगर आपने यहाँ से RSI प्रेस किया, सो आप देखो यहाँ पे एक ऑप्शन है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ओके, सो इसको आपको सिलेक्ट करना है। देन द सेकंड ऑप्शन इज पैरामीटर। ओके, सो अगर आपको ओवरबॉट या ओवरसोल अगर आपको चेंज करना है, आपको यहाँ से ही चेंज करना पड़ेगा। ओके, जो भी आपके लेवल्स रहेंगे वो आपको यहाँ से चेंज करना है। अगर आपके पैरामीटर्स कुछ चेंज है, वो आपको यहीं से करना है। कुछ पीरियड चेंज करना है, आपको यहाँ से करना है। सो ओवरऑल सारे कंडीशंस के जो पैरामीटर्स वो आपको ये विंडो में मिल जाएंगे। देन द कंडीशन इज फर्स्ट वन, एंटरिंग ओवरबॉट जोन। अभी ये कंडीशन के हिसाब से आई हैव सिलेक्टेड द ओवरबॉट जोन एज अ 70। सो व्हेन आई क्लिक ऑन दिस ओवरबॉट जोन, इट विल आस्क यू which RSI you wanted to cross. So here I have selected the RSI, and the second one is the RSI average. Okay, so now I am selecting only the RSI and I have to add. Okay, so when I add it on the chart, okay, now here I am running this query. Okay, once I selected this, I am running on the FNO stocks. Okay, the NSE FNO. So it will give me result on the basis of the NSE FNO. So आप यहाँ पे देख रहे हो, I am getting total 5 scripts. फर्स्ट इज AU बैंक। ओके, अगर आप यहाँ पे चेक करो, ये करंट कैंडल है। ओके, करंट कैंडल इज क्रॉसिंग द 70 लेवल। आप यहाँ पे चेक करो, आपको राइट साइड में आपको यहाँ पे दिखा रहा है जो RSI लेवल्स है। ओके, ये लेवल्स है। आप यहाँ पे चेक करो, ग्रीन वाला जो है ये विंडो में, इट्स शोइंग 70.56 बिकॉज प्रीवियस बार में RSI was below 70. Now this time it's crossing the freshly. Okay, so entering into oversold means कि वो फर्स्ट टाइम ओवरबॉट जोन में क्रॉस कर रहा है। ओके, सो अगर आपको वैसा कुछ कंडीशन चाहिए, देन यू कैन यूज दिस क्वेरी, दिस कंडीशन। ओके, सो आप यहाँ पे भी चेक करो, ये प्रीवियस डे का इसका जो RSI है वो 68.68 है M&M फाइनेंस का, बट अगर आज का आप चेक करो इट्स 72.05। सो वो 70 को फर्स्ट टाइम फ्रेशली क्रॉस कर रहा है। सो ये कंडीशंस आपको हेल्प करेगी जब आपका स्टॉक वेरी फर्स्ट टाइम क्रॉस कर रहा है ओवरबॉट जोन को। ओके, सो या अगर आप फर्स्ट टाइम किसी बुलिश स्टॉक के लिए जा रहे हो तो आप ये कंडीशन यूज कर सकते हो। ओके, नाउ वी मूविंग ऑन कंडीशन 2 विच इज इन ओवरबॉट जोन। एज अगर आप यहाँ पे चेक करो, RSI एक ऑसिलेटर है। ओके, so it having a range from 0 till 100. Okay, and in that we have selected the overbought zone is which is above 70. Okay, so यहाँ पे जो जोन क्या हो गया, 70 से लेकर 100। so मुझे अगर फाइंड आउट करना है कि कौन सा स्टॉक है जो ऑलरेडी ओवरबॉट जोन में है, इन ओवरबॉट जोन मींस
which is already in a overbought zone, which is between 70 till 100. ओके, सो आपको ये जो कंडीशन इसको मैं मॉडिफाई कर देता हूँ सेम, एंड इन ओवरबॉट जोन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, सेम क्राइटेरिया आरएसआई या आरएसआई एवरेज जो आपको सिलेक्ट करना आप सिलेक्ट कर सकते हो, देन मॉडिफाई। ओके, अभी मैं इसको रन करता हूँ, मुझे क्या दिखा रहा है, अदानी एंटरप्राइजेस। ओके, आप यहाँ पे चेक कर रहे हो कि ये जोन है आरएसआई इज ऑलरेडी इन 70 to 100 जोन। सो आप यहाँ पे इसको चेक कर सकते हो। सो बेसिकली if you wanted to find out the stock which is already in a overbought zone, then you can use this condition. उसका एग्जांपल आप यहाँ पे चेक कर लो, इसके अंदर मैंने दिया हुआ बंधन बैंक जहाँ पे आरएसआई इज ऑलरेडी अबाउट 70, सो इसका आरएसआई 72.20 है। ओके, सो अगर आपको फाइंड आउट करना है जो ऑलरेडी ओवरबॉट जोन में है, देन यू कैन यूज दिस कंडीशन। नाउ द थर्ड कंडीशन इज exiting overbought zone. Actually this condition will help you to finding out the reversal from the stock, क्योंकि जब अगर वो ऑलरेडी ओवरबॉट जोन में था एंड देन वो फर्स्ट टाइम जब ओवरबॉट जोन से एग्जिट हो रहा है तब हमें ये रिजल्ट देगा। सो ओवरऑल इट्स अ काइंड ऑफ अ रिवर्सल कंडीशन you can find, and then accordingly you can use in your technical query. So अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ exiting overbought zone, ओके, अब यहाँ पे ओवरबॉट जोन कौन सा 70, सो जब स्टॉक 70 के नीचे डाउन साइड फर्स्ट टाइम क्रॉस करेगा तब ये हमें रिजल्ट देगा। जैसे कोलपाल मैंने क्लिक किया, अब आप यहाँ पे देखो ये जो आरएसआई है अभी करंटली इसका अगर आप देखो वो आरएसआई 68 है, बट प्रीवियस डे का कितना था, वो था 71.45। सो ओवरऑल द कंडीशंस ऑफ आरएसआई which is showing that today the RSI is crossing the overbought zone into downside, and then as compared to previous day it's crossing the very first time below 70। सो आप यहाँ पे इसको यूज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे अगर आप डेली यूज कर रहे हो तो डेली में आपको खाली एक ही स्टॉक दिखा रहा है जिसने फर्स्ट टाइम 70 के नीचे क्रॉस किया है। अगर मुझे यही चीज अगर मुझे एक दिन पहले का देखना है तो मुझे यहाँ पे ऑफसेट क्वेरी में 1 डाल देना है, ताकि मुझे एक दिन पहले का रिजल्ट दिखा देगा। जैसे कि अदानी पोर्ट से भारतीय एयरटेल है, ओके, तो भारतीय एयरटेल को सिलेक्ट करता हूँ। अगर आप यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे जो आरएसआई है अबाउ 70 है, बट वेरी नेक्स्ट कैंडल इट्स 63। ओके, सो उसने फ्रेश 70 क्रॉस किया था, देन उसने नेगेटिव साइड उसने मूव किया टिल 63। ओके, सो करंटली वो बिलो 70 है। सो अगर जहां पे भी रिवर्सल होगा आरएसआई में, सो वी कैन यूज दिस exiting overbought zone condition. Okay, now we move on condition number 4, where it defining entering oversold zone, which is the exact vice versa of entering overbought zone. अब जब आप आरएसआई के अंदर एक जोन बना रहे हो, ओवरबॉट एज वेल एज ओवरसोल्ड। ओके, सो ओवरसोल्ड जनरली आपके लिए तब हेल्प होता है जब आप सोचते हो कि हाँ कि मुझे ऑलरेडी उस जो स्टॉक है उसका ट्रेंड मुझे नेगेटिव लग रहा है। ओके, डिपेंड करता है कि उसको किस तरीके से हर कोई रीड कर रहा है, बट इट्स अ बेरिश कंडीशन। सो हम लोग यहाँ पे जाएंगे एंटरिंग ओवरसोल्ड जोन। जनरली हम जब ओवरसोल्ड जोन लेते हैं सो वी यूज अ क्राइटेरिया ऑफ, बिकॉज 30-70 है तो 30 रहेगा और इसको हम यूज करेंगे। सो अगर मैं यहाँ पे इसको 0 लेता हूँ ताकि करंट पे आपको पता चल जाएगा, कोई ऐसा स्टॉक नहीं है जो क्रॉस कर रहा है बिलो 30। सो मैं थोड़ा ग्रुप बड़ा कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे यूज करता हूँ निफ्टी 500, जिससे क्या होगा कि आपको मैक्सिमम स्टॉक्स फाइंड आउट करने मिल जाएंगे कि कहाँ पर ओवरसोल्ड कंडीशन बन रही है। ओके, तो करंट मार्केट में जहां पे भी स्टॉक क्रॉस कर रहा है फर्स्ट टाइम बिलो 30, तब वो हमें दिखाएगा। अभी करंट मार्केट में तो ऐसे किसी ने स्टॉक किया नहीं टिल निफ्टी 500 में।
ओके, सो मुझे लग रहा है कि अभी मेरे को पूरा कंडीशंस यूज करना पड़ेगा टू रन ऑन होल एनएससी। बट अगर मुझे वो जोन अगर मुझे चेंज करना है, जैसे अगर मैं यहाँ पे 30 जगह पे मैं समझो 40 यूज करता हूँ या 50 यूज करता हूँ, ताकि हमें रिजल्ट पता चले। अगर मैं यहाँ पे ओवरसोल्ड जोन अगर मैं लेता हूँ लेस देन 50, अब देख रहे हो अल्केम आ गया, बिकॉज मैंने यहाँ पे ये 50 को मैंने ओवरसोल्ड जोन बना लिया टू फाइंड आउट द रिजल्ट। ओके, सो फर्स्ट टाइम अगर आप देखो यहाँ पे प्रीवियस डे जो था वो अबाउ 50 था, एंड देन करंट डे इट्स बिलो 50। आपको यहाँ पे वो रिजल्ट दिखा दिया वेयर स्टॉक इज क्रॉसिंग बिलो 50। सो ये कंडीशन आप यूज कर सकते हो एंटरिंग ओवरसोल्ड जोन। नाउ वी मूविंग ऑन कंडीशन नंबर 5 इन ओवरसोल्ड जोन। अगर आपको फाइंड आउट करना है वेयर अ स्टॉक इज ऑलरेडी इन अ ओवरसोल्ड जोन which is not crossing at the first time, but वो already उस zone में है, then you can use this query, this condition। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, I'll choose oversold zone। अब यहाँ पे देखो oversold zone which is already selected as the 50, so instead of that I can use a range। okay, जो अगर मुझे यहाँ पे लग रहा है 30 के नीचे है, तो 30 के नीचे जो जो स्टॉक्स है वो सारे मेरे को दिखाने चाहिए। अब मुझे यहाँ पे कोई नहीं दिखा रहा है बिकॉज काफी दिन से मार्केट पॉजिटिव है, तो हम यहाँ पे इसको ले लेते 50। 50 के नीचे जो स्टॉक्स है, अभी ये सारे स्टॉक्स है जो 50 के नीचे है। ओके, सो ऑलरेडी अगर आप यहाँ पे चेक करोगे काफी वक्त से ये 50 के नीचे है। सो मोस्ट ऑफ स्टॉक जो है दे आर बिलो 50 बट नॉट क्रॉस्ड बिलो 30। सो वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, एग्जाम्पल में आप चेक करते हो, दिस इज अ लाल पैथ where stock is below the oversold zone which I choose as a 30, and in that you can use, you can see the RSI is 23। yeah, so this you can use to finding out in oversold zone stocks। now we move on condition number 6 where exiting oversold zone, जो फर्स्ट टाइम रिवर्स कर रहा है, जहां पे भी एक्सपेक्ट कि स्टॉक जो है वो रिवर्स होके अपर साइड मूव करेगा। सो जिनको भी अगर हम फाइंड आउट कर रहे हैं कि बुलिश ट्रेंड फाइंड आउट करना है, देन दे कैन यूज दिस कंडीशन एग्जिटिंग ओवरसोल्ड जोन। मैंने यहाँ पे इसको कंडीशन यूज किया एंड आई एम रनिंग। सो ओवरसोल्ड जोन ये 50 था। अब अगर मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि 50 एरिया पे अगर मैं चाहूँ तो मैं 40 भी यूज कर सकता हूँ, ताकि हार्डली एक या दो स्टॉक्स मुझे मिल जाए अगर हो तो। नहीं, मतलब मेजोरिटी जो स्टॉक्स है वो अबाव 50 से मतलब अबाव 40 के ऊपर से ही रिवर्स ले रहे हैं, बिकॉज मार्केट पॉजिटिव है। तो यहाँ पे मैंने आवाज लिया, अगर आप यहाँ पे चेक करो आवाज previous day RSI was 46 and current day RSI is greater than 50। so वो रिवर्स ले रहा है यू शेप काइंड। सो ये चीजें आपको हेल्प करती है जब आपको रिवर्स लेगा, एंड इफ यू आर गेटिंग अ ग्रीन कैंडल एट द सेम टाइम, so there will be a very high chances that you will get a good momentum positive side stock। हाँ, ओके, सो हाँ ये आप यूज कर सकते हो टू फाइंडिंग आउट अ बुलिश स्टॉक। जनरली ये पोजिशनल्स के लिए ज्यादा अच्छा होता है, बिकॉज वहां पर जो रिवर्सल साइन है एंड उसके साथ में अगर आपको कोई कैंडलस्टिक पैटर्न मिल जाता है, लाइक कि आपको हैमर मिल गया या ट्विजर बॉटम मिल गया, तब आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो आप ये यूज कर सकते हो। ओके, सो दिस इज एग्जिटिंग ओवरसोल्ड जोन। नाउ कंडीशन नंबर 7 कटिंग एवरेज अपवर्ड। तो अगर आप कटिंग एवरेज अपवर्ड देख रहे हो, विच मीन्स where RSI and RSI average is there, where RSI is crossing RSI average upper side। जैसे एग्जांपल अगर आप देख रहे हो ये कंडीशन में, ये पीपीटी में ग्रीन लाइन एंड रेड लाइन, ग्रीन लाइन इज द RSI, रेड लाइन इज द RSI एवरेज। जब फर्स्ट टाइम क्रॉस कर रहा है तब ये हमें रिजल्ट दिखाएगा, विच मीन्स where RSI is crossing RSI average,
वेरी फर्स्ट टाइम, तब एक अर्ली सिग्नल से टू गेट अ good reversal for the stock, or we can expect that the stock will move in that direction for positive direction. So we can use this condition to finding out bullish stocks. जैसे मैंने यहाँ पे यूज किया है कटिंग एवरेज अपवर्ड. नाउ आई एम रनिंग, ओके, आई एम रनिंग ऑन NSE दिस निफ्टी 500. अगर मैं यहाँ पे आरती पे क्लिक कर रहा हूँ, ओके, आप यहाँ पे चेक करोगे कि आरती में प्रीवियस डे वो, अगर आप ये जो कंडीशंस है उसको अगर थोड़ा सा अगर मैं बड़ा करके दिखाता हूँ, कंट्रोल एस इज यूज्ड टू जूम द स्टडी. ओके, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 7th को वो बिलो था एंड अब यहाँ पे देखो 8th को उसने वापस रिवर्स किया है, विच मीन्स ये जो कैंडल है क्रॉसिंग है वो रिसेंट कैंडल पे हो रहा है. ओके, तो अगर आपको जूम आउट करना है तो Z प्रेस करना है. सो अगर कोई कैंडल में फर्स्ट टाइम क्रॉस हो रहा है, क्रॉसिंग हो रहा है, तो आप उसको यूज कर सकते हो ये कंडीशन के बेसिस पे. सो कटिंग एवरेज अपवर्ड where green line is crossing red line very first time. Now we move on condition number 8, where cutting average downward, which means it's a vice versa of the bullish condition, where RSI is crossing the RSI average at very first time bottom side, downside. Okay, so अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, सेम कंडीशन आई एम यूजिंग फॉर कटिंग एवरेज डाउनवर्ड, मॉडिफाई किया एंड रन. अगर आपको बेयरिश स्टॉक्स फाइंड आउट करना है देन यू कैन गो फॉर दिस कंडीशन. आप देख रहे हो यहाँ पे, और साथ में कंडीशन अगर आप यूज करते हो, if a candle is crossing RSI, where RSI is crossing the RSI average downside, and where RSI is below 30 or below 40, whichever the parameter that you wanted, also where candle closing is at day low, so उससे काफी अच्छे कॉम्बिनेशन आपको मिल जाएंगे. सो ये नेगेटिव कंडीशंस आपके लिए हेल्प करेगी, लाइक दिस. ये जब कंडीशंस फॉर्म हो रही रहेगी फ्रॉम मॉर्निंग से, आपको दिख रहा है कि वो ऑलरेडी धीरे धीरे नीचे जा रहा है, बिकॉज जितने बार डे लो होगा और क्रॉसिंग हो रहा है RSI के अंदर, उतने ज्यादा पोटेंशियल है वो स्टॉक नेगेटिव साइड चलेगा. सो अगर आप यूज कर रहे हो तो यू कैन यूज ओपन इक्वल्स टू लो, सॉरी ओपन द क्लोजिंग इक्वल्स टू लो एंड RSI is crossing downward, which means RSI cutting average downward. Okay, then next condition is condition number 9, where above average for last and burst. जनरली ये कंडीशन इसलिए यूज होती है ताकि आप फाइंड आउट करो जो स्टॉक्स RSI या RSI एवरेज को क्रॉसिंग कर चुका है बट हमें बार डिफाइन नहीं कर पा रहे. लाइक कि अगर किसी स्टॉक ने 10 दिन पहले RSI को क्रॉस किया, लाइक RSI एवरेज को RSI ने क्रॉस किया, उसके बाद से वो ऊपर ही चल रहा है. सो मुझे वो स्टॉक फाइंड आउट करना है जो ऑलरेडी RSI एवरेज के ऊपर चल रहा है. लाइक जैसे एग्जांपल मैं यहाँ पे देता हूँ, ये स्टॉक्स हैं. ओके, अगर मैं यहाँ पे देखूं, ये क्रॉसिंग यहाँ पे हुआ है, ओके, ऑन 30th. उसके बाद से अगर आप देखो RSI एवरेज के ऊपर ही चल रहा है. ओके, सो हर बार हमें पता नहीं कितना टाइम तक RSI का एवरेज या कौन से बार पे कट हुआ है, बट मुझे ये फाइंड आउट करना है stocks which is already in a bullish, but at the same time RSI should be above the RSI average. तो उसके लिए कंडीशन जो है वो है above average for last n bars, which means आपका RSI आपके RSI एवरेज के ऊपर है, जस्ट सिंपल सिंगल कंडीशन में. तो आपको यहाँ पे जाना है above average for last n bars, which means कि आपका RSI है वो RSI एवरेज के ऊपर है. अब यहाँ पे अगर आप चेक करो तो आपको यहाँ पे मिलेगा नंबर ऑफ बार्स,
विच मीन्स कितने बार से आपका जो RSI है वो RSI एवरेज के ऊपर होना चाहिए. From how many bars you wanted that your RSI will be above the RSI average. So I am defining over here as a 1 and then I have to modify. मैंने modify किया and जब मैं इसको run करूंगा I can run on a smaller group or the your user defined group. So मैंने एक बार के लिए यहाँ पे थोड़ा छोटा ग्रुप लिया है to finding out the stocks. Okay, अब मैंने यहाँ पे क्लिक किया एक्सिस बैंक. सो मुझे एटलीस्ट ये दिखा रहा है करंट बार पे जो RSI इज अबव द RSI एवरेज. इससे क्या होगा, आपको बुलिश ट्रेंड वाले स्टॉक्स ही मिलेंगे, भले उसने फर्स्ट टाइम क्रॉस किया हो या थर्ड टाइम क्रॉस किया, लेकिन एट द एंड जो RSI इज अबव RSI एवरेज. तो ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हो एग्जांपल में, जहाँ पे सिप्ला का स्टॉक है, जहाँ पर ग्रीन लाइन इज द RSI and RSI is crossing 2 days ago and now it already above the RSI average. So अगर आपको फाइंड आउट करना है कि हाँ बुलिश कंडीशन है, then you can use this. The next condition is below average for last n bars. Okay, below average means अगर आपको ऑलरेडी, जैसा अभी हमने करंटली देखा कंडीशन नंबर 9 में, where RSI is above the RSI average, it's a vice versa condition where RSI is below the RSI average for last n bars. So उसके लिए आपको यहाँ पे जाना है और जो कंडीशन है उसके जगह पे वाइज वर्सा कर लेना है. जब आप इसको सिलेक्ट करोगे सो यहाँ पे बिलो एवरेज फॉर लास्ट एंड बार का कंडीशन है. You have to choose that, and when you select that condition it will ask you the number of bar. So I have to choose a number 1, 2, 3 whatever, but if you want the latest one always choose 1. तो मैंने यहाँ पे ये मॉडिफाई कर दिया एंड देन मैं रन करता हूँ. तो जो नेगेटिव स्टॉक्स है वो मुझे यहाँ पे देखने मिलेंगे. लाइक अदानी पोर्ट क्लिक किया, अब देखो ये ऑलरेडी जो है ये नेगेटिव साइड है, बिकॉज वो भले ही पैरामीटर्स कहाँ पे भी हो, RSI कितना भी हो, मे बी अबाउ 70 हो या बिलो 30 हो, बट एट द एंड इट विल कंपेयर विद द RSI एवरेज ओनली. अगर आपका RSI एवरेज नहीं है, बिकॉज many websites provide a single RSI line but they don't provide the RSI average. Okay, so जिनको सिंगल लाइन चाहिए they can go over here RSI and instead of that the 9 they can use 1. Okay, तो वहां पे क्या होगा, आपको खाली RSI आएगा, बट अगर आपको RSI एवरेज चाहिए तो आप वहां पे जाके 9 ये जो भी आपको बेस पीरियड से दैट यू कैन यूज, बिकॉज जब RSI एवरेज साथ में होगा तो आपको ज्यादा बेटर वे में समझाया कि क्या होना चाहिए एवरेज एंड कितना ही चल रहा है. सो आपको ट्रेंड अच्छा दिखाता है, तो आप ये यूज कर सकते हो RSI एवरेज. तो अगर आप यहाँ पे when you select this Bajaj Finance Finserv, sorry this is Bajaj Finserv and this is Bajaj Finance, अब देखो वो ऑलरेडी 2 या 3 बार से नीचे ही चल रहा है, बिकॉज वी ऑलरेडी चूज अ कंडीशन where your RSI is below average for last n bars. Okay, so this is condition number 10. Now we are moving on condition number 11. अब यहाँ पे एग्जांपल के साथ में बताता हूँ. कट अबव एवरेज ऑन एंड बैक बार. सबसे पहले ये कंडीशन को समझिए. कट मींस फर्स्ट टाइम क्रॉसिंग, अबव एवरेज ऑन आपका जो करंट RSI है विच इज ऑन द nth बैक बार. जहां पे भी ये जो वर्ड आता है nth बैक बार, विच मींस हम किसी भी एक पर्टिकुलर बार को डिफाइन कर रहे हैं. when we read out this condition where the condition is cut above average on nth back bar. Back bar means we are defining the bar on which bar the RSI is crossing. It will help us to find out the exact location where crossing is there. So अगर किसी को find out करना है कि मुझे 2 बार पहले या 3 बार पहले उसी बार पे क्रॉसिंग होना चाहिए, then you can use this condition. So अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैंने पे क्लिक किया एंड यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया कट अबव एवरेज ऑन nth बैक बार.
okay, which is condition number 11. okay, cut above average on nth back bar. अगर मैं यहाँ पे यूज करता हूँ नंबर ऑफ बार्स 3, विच मीन्स मैं ये डिफाइन कर रहा हूँ कि मुझे तीसरे बार पे क्रॉसिंग हुआ है पॉजिटिव साइड, बिकॉज अबव एवरेज की बात है, विच मीन्स कि स्टॉक जो है, जो आरएसआई है, जो आपका करंट आरएसआई है, वो आपके आरएसआई के एवरेज के ऊपर होगा, बुलिश कंडीशन होगी। इसको मैं रन करता हूँ, निफ्टी 50 में नहीं आया। अब मैं उस जो रिजल्ट को इंक्रीज, मतलब रिजल्ट को ज्यादा देखने के लिए आई एम चूजिंग निफ्टी 500। ओके, सो मुझे यहाँ पे क्या दिखा रहा है, मुझे दो स्टॉक दिखा रहे हैं, इंडिया होटल एंड सेकंड वन इज MHRIL। अब यहाँ पे इंडियन होटल अगर मैं चूज कर रहा हूँ, अब देखो वी चूज द कंडीशन ऑफ nth बैक बार नंबर इज 3, सो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। ओके, सो अगर आप ये देखो, ये बार पे अगर आप चेक करो तो जो क्रॉसिंग है वो ऑलरेडी डाउन साइड है, बट यहाँ पे रिवर्स हुआ है बिकॉज हमने थर्ड बार बोला 1 2 3, सो ये थर्ड बार पे क्रॉसिंग हुआ था। So we are defining the bar on which your RSI should cross. If you want such kind of parameters, then you can use this condition, which is cut above average on nth back bar, which is a bullish condition. Same, vice versa, we can use the other one, but in this example, you can see the this is Bandhan Bank, where I think I have choose the bar 3, and on this bar, it's defining that this candle is on this candle the RSI is crossing. Okay, so this is the condition number 11. Now we moving on condition number 12, which is the vice versa of the previous condition. Cut below average on nth back bar, which means आपका जो RSI है वो क्रॉस कर रहा है नेगेटिव साइड, and we are defining on which bar this RSI should cross. So यहाँ पे मैं आता हूँ कंडीशन में, and then I have used the condition 12. Okay, cut below average on nth back bar. सेम वे मैं यहाँ पे भी कंडीशन नंबर ऑफ बार्स 3 यूज करता हूँ। ओके, रन करता हूँ। सो थर्ड बार वी आर डिफाइनिंग थर्ड बार 1 2 एंड दिस इज 3। ओके, तो दिस पर्टिकुलर बार मैंने इसको डिफाइन किया। सो इफ a condition where it defines nth bar or nth back bar, which means we are defining that bar कि कौन से बार पे वो क्रॉसिंग होना चाहिए। ओके, सो दिस इज अ bearish condition. Now condition number 13, which is cut above average in last n bars. अगर आप यहाँ पे चेक करो, प्रीवियस कंडीशन का टाइटल ये था कट अबव एवरेज इन लास्ट बैक बार। ओके, सॉरी, in nth back bar. Now this condition is showing last n bars, which means कि प्रीवियस कंडीशन में हम डिफाइन कर रहे थे कौन से बार पे कट होना चाहिए, बट हियर वी आर गिविंग अ रेंज कि कितने बार के अंदर होना चाहिए। लाइक पिछले बार में हमने नंबर ऑफ बार्स 3 यूज की, विच मीन्स स्पेसिफिकली जो करंट से लेके बैक बार जो नंबर थर्ड रहेगा वहीं पे क्रॉस हुआ है। बट हियर इफ वी यूज लास्ट एन बार्स, लाइक अगर मैंने यूज की लास्ट एन बार्स 3, विच मीन्स करंट जो बार नंबर 1 है वो प्रीवियस डे बार नंबर 2 और उसके पहले बार नंबर 3 कहीं पे भी क्रॉस होगा, देन इट विल शोज द रिजल्ट। ओके, सो अगर आप यहाँ पे चेक करो, दिस इज MNF। अगर मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ बार्स 2 यूज किया है बिकॉज आई एम डिफाइनिंग दिस 2 बार्स। ओके, सो मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ बार्स 2 यूज किया एग्जांपल में। अब देखो नंबर ऑफ बार्स 2 के हिसाब से वो करंट पे भी क्रॉस सकता है, वो प्रीवियस बार पे भी हो सकता है। सो उसने यहाँ पे करंट पे क्रॉस किया है। सेम एग्जांपल वी कैन सी इन दिस स्कैनिंग क्वेरी, टेक्निकल क्वेरी। cut means first time crossing above average in last n bars. So अगर मैंने यहाँ पे यूज किया 3, so लास्ट 3 बार्स के अंदर कहीं पे भी क्रॉस हुआ होगा वो
स्टॉक्स ये हमें दे देगा। जैसे मैं लेता हूँ बैंक निफ्टी, छोटा ग्रुप है, फेडरल बैंक। ओके, अब देखो लास्ट 3 बार्स मैंने चूज किया, इसने करंट बार पे ही कर दिया, विच इज बार 1, दिस इज बार 2, दिस इज बार 3। सो अगर कहीं पे भी क्रॉस हुआ होगा वो दिखा देगा। सेम वे मैं ऑफसेट 1 ले लेता हूँ, नहीं आया, ऑफसेट 2 अगर रहेगा देन इट विल शो, नहीं दिखा, विच मीन्स कि अगर मैं यहाँ पे अगर मैं कोई भी स्टॉक ले रहा हूँ तो लास्ट 3 बार्स के अंदर खाली एक ही बार क्रॉस है, वो है फेडरल बैंक। सेम वे अपोलो हॉस्पिटल, ओके, इसने आज के दिन में ही क्रॉस किया है। डॉक्टर रेड्डी, आप देखो 1 2, मतलब ये बार पे क्रॉस हुआ है, बार नंबर 2। एसबीआई लाइफ बार नंबर 2। ओके, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, बार नंबर 1, विच मीन्स अगर कोई थर्ड बार पे हुआ होता तो थर्ड बार का भी दिखाता। सो वी आर नॉट डिफाइनिंग अ बार, वी आर डिफाइनिंग द नंबर ऑफ कैंडल्स इन दिस कंडीशन, कि कोई भी रेंज में क्रॉस हो, बस खाली मुझे वो रिजल्ट दे देना चाहिए। Okay, so this is the condition number 13, and the last condition for the day, which is the vice versa of this condition, cut below average in last n bars, which means कि आपका conditions जो जो RSI क्रॉस हो रहा है वो लास्ट सर्टेन बार्स में से कहीं पे भी होना चाहिए। जैसे कि मैंने अगर नंबर ऑफ बार्स 2 यूज किया है, सो करंट एंड द प्रीवियस वन, कहीं पे भी वो क्रॉस हो सकता है। ओके, सो again we go to this technical query and I'm modifying the condition cut below average in last n bars। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 3। ओके, अगर यहाँ पे देखो टेक, माय आई एम दिस एचसीएल टेक 1 2 3, सो इन तीनों बार में भी कहीं पे भी होता तो इसने थर्ड बार पे किया, सो मुझे दिखा रहा है कि हाँ कि ये बार पे हो गया। सो वी आर डिफाइनिंग अ रेंज। देखो अभी यहाँ पे अगर मैं देखूं, ये यहाँ पर ये भी थर्ड बार पे हुआ है, दिस इज ऑन सेकंड बार, तो आपको यहाँ पे ये करंट बार पे हो रहा है। सो वी आर नॉट डिफाइनिंग अ पर्टिकुलर बार, वी आर डिफाइनिंग अ रेंज ऑफ नंबर ऑफ बार्स। सो ये कंडीशंस आप यूज कर सकते हो टू improve your query। You can create this condition with any other indicator, so that will help you to give you more filter stocks। ये कुछ 14 conditions है जो आज हमने कवर किए हैं। ओके, द रेस्ट condition which is from 15 till 27 will be covering tomorrow at 12 p.m। जहां पे आप देख रहे हो, जहां पे you can see these conditions which is covered tomorrow at 12। Okay, so today's session will be over here। Okay, and if you have any doubt, you can contact us on the support number। So you can contact us on 022 3501 8383। Okay, for any queries you can contact us on this WhatsApp number or any this landline number, or you can mail us on this support@spidersoftwareindia.com, so that we'll solve your queries। Okay, so I think we can see you tomorrow at 12, and we'll continue with the session। Thank you everyone for attending this webinar।